Good morning students. Welcome to our VVPS e-learning classes and this is our maths class. Today 7 May 2020 we are going to complete exercise 1.4. These are today's classwork. You have already learned about various properties of rational number such as commutative property, associative property, etc. So today we are going to learn about a new property, that is distributive property. There are two types of distributive property. One, distributive property of multiplication over addition. Second, over subtraction. So first I am going to discuss about distributive property of multiplication over addition. A into B plus C equal to, when you open the bracket, multiply each term which is inside the bracket by A. That means that is equal to A into B plus A into C. This property is called distributive property of multiplication over addition. Second is distributive property of multiplication over subtraction. Subtraction means in the place of plus sign there is a minus sign. So when you open the bracket, the answer will be A into B minus A into C. Normally बच्चे जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सिर्फ C लिखते हैं, A into ये लिखना भूल जाते हैं. So be careful while you are opening the bracket. Proper use this property. Now with the help of this property, we are going to solve some questions. First question. Question number 9 का first question. Use the distributivity of multiplication over addition and simplify. इसको simplify करने का दो मेथड है. एक, first use the bracket. पहले bracket को solve करो फिर multiply करो. मगर question में ये बताया गया है you have to use distributive property of multiplication over addition. That means we are going to use this formula. तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? 5/3 इंटू 24/5. पहले इसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन अ प्लस साइन, दिस प्लस साइन, अगेन 5/3 इंटू 9/10. तो इस नंबर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये सबको समझ में आया? ओके. अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो देयर आर टू क्वेश्चन, वन मल्टीप्लिकेशन, अनदर मल्टीप्लिकेशन, इन बिटवीन देयर इज अ प्लस साइन. तो पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं. 5 गेट कैंसल्ड, 3 8 24. तो इसका क्या आंसर आया? 8 प्लस यहां पर 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10. तो 3/2. अब एडिशन करना इजी है. 8 मीन्स 8/1. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 and 2? दैट इज 2. 16 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 19/2. So this is the first answer. In this way you can solve this two question. 2/3 into 9/5 plus 6/7. आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करना है. एंड दिस वन -3/4 इंटू 5/2 प्लस 7/6. तो ये दोनों आपका होमवर्क है. नाउ लेट्स रिमेंबर, देखते हैं कितना प्रॉपर्टी आपको याद है. सो वी आर गोइंग टू explain some other question. Question number 10. State the property used in each of the following. There are some statement. ये statement देख के आपको बताना है कौन सा property यूज हुई है. First one, 2/5 into 3/7 equal to 3/7 into 2/5. Multiply, सिर्फ अपना position change हो गया numbers का. So what is the name of the property? This is commutative property. This is commutative property. Commutative property. Second one,
a by b into b by a इक्वल टू b by a into a by b इक्वल टू 1। a by b और b by a क्या है? एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे आंसर हमेशा 1 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी 3/4 इंटू 2/5 प्लस 1/7 इक्वल टू दिस इज। अभी अभी मैंने कहा ये प्रॉपर्टी क्या है? जब ब्रैकेट ओपन करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। यस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition. Fourth one, for any rational number a by b into 0 is equal to 0 into a by b equal to 0. इसमें क्या कह रहा है? जो हम लोग बचपन से जानते हैं, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 होता है। तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, यही प्रॉपर्टी का नाम है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव property of 0. Last one, minus 4/7 into 1 equal to 1 into minus 4/7 equal to minus 4/7। जैसे प्रीवियसली 0 का प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है। ये प्रॉपर्टी क्या है? 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आता है। That's why 1 is called multiplicative identity। बेटा ये दो अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा रिविजन हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ सम वर्ड प्रॉब्लम। Question number 11. Rajini bought 2 complete 1/2 kg onions at rupees 30 complete 1/2 per kg. Find the amount spent by Rajini. Total amount. 1 kg of onion cost 30 complete 1/2 rupees. कितना खरीदा है? 2 complete 1/2। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, अगर है कल क्लास में डिस्कस करने। अब डू द कैंसिलेशन। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। प्लीज रिमेंबर 2 कैंसिल नहीं होता है। कैंसिलेशन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। सो 2 2s are 4, 61 into 5 305 अपॉन 4। तो इसको हम फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये क्या है? ये रुपीज है। सो दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इज 75 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7/5 मीटर्स ऑफ रिबन। तो क्या होगा टोटल कॉस्ट? 1 मीटर का कॉस्ट है 75। इतना मीटर का कॉस्ट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू रुपीज 105। So today we have finished exercise 1.4. That's all for today. Thank you, class.